So in our last class, we basically started chapter 3rd, basic overview of Python. Okay. In today's class, I will quickly revise the facts. I will quickly revise all the concepts which had studied in our last class, and then we will see some examples. I will show you the screen, I will run some examples, I will run some programs, and we will see the output. And then you have to try those programs in your own mobile. Okay. So let's start. First, quickly revise all the facts which I had explained you. So what is a Python? Python is basically a programming language. What is a program? Program I have shown you. Okay. So this is basically a program like x equal to 5, and if I print x, so this is basically a program. Okay. So similarly, I have shown you the PyDroid 3 ID. I have shown you the PyDroid 3 app in which we have two windows basically. Okay. So when you open the PyDroid 3 app, so PyDroid 3, so basically there are two windows. One is a editor window. One is a editor window and another is an output window. This is editor window and this is output window. Output window is black. Okay. You see the black screen. Okay. And this is in white. So whenever you open this app, a white screen is appear. Okay. That is basically editor where you write your programs. Okay. तो जो white screen है वो open हो जाएगी, उस पर आपको आपके program लिखने होते हैं. And when we run this program, we get the output on a black screen. ठीक है. This is called output window. और जब आप इस program को run करवाते हो, वो yellow button पे click करके, yellow button पे click करके, तो output window में जो है आपका output आ जाता है. ठीक है. So this is one thing. So you have to write program here, and when you will run your program, so basically this is like this. Okay. So you have to write your program here. When you will run, the output will appear in the black screen. Okay. The black window, that is basically called output window, and this is called editor. Editor means text editor. You have to write your program here. Now, suppose when I say that this is a program, that means, so whenever I make a program, basically I have to run it. Whenever I make a program, I have to run it to see the output. Okay. जब प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको रन करवाना पड़ता है, और जब उस प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो ही उसका आउटपुट आता है. तो whenever I run a program, so you can write this statement: whenever we run a program, run or execute. Okay, they both are same meaning, execute. So instead of run, I can also say execute. Okay. So whenever I run a program, or whenever I run a program, or whenever I execute a program, both are same thing. Either I run it or I execute. Whenever we run or execute a program, all the statements in the program starts running or executing one by one. ठीक है. So suppose this is my program, x equal to 5, and I print x, and then I have one more line, y is equal to 6, and then I print y. So basically this is my program, is on the white screen, and when I run this program by click on the yellow button, so an output will occur. So print x means it will print x equal to 5 is a statement, so it will assign value 5 to the variable x, and then print x. So print x will basically print on the output window. The value of x is 5, so here it will print 5. And then again y equal to 6, okay, this statement, this line will be executed, y equal to 6, then this line will be executed, so print y means 6. So this we will get on the output window. So understand, this is our program. Okay, this is our program, and when we run the program, the output occurs on the output window.
And also when I run a program, each statement, these basically each line in a program is called a statement. ठीक है, so each line is basically equal to statement. ओके, सो ईच लाइन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटमेंट. ठीक है, हम जो हर लाइन को होता है, ये जैसे ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो हर लाइन जो है हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है, जैसे ही पूरा पूरा प्रोग्राम रन होता है, जब हम पूरे प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो पहली लाइन जो है वो रन होती है, फिर दूसरी लाइन रन होगी ना, पहले फर्स्ट लाइन रन होगी, फिर दूसरी लाइन रन होगी, फिर तीसरी लाइन रन होगी, फिर फोर्थ लाइन रन होगी. ओके, व्हेनेवर आई स्टार्ट रनिंग ए प्रोग्राम, so the statement start running from first to end. So the first statement will run, second statement will run, third statement will run, and then fourth statement will run. So this way I can say both of the things, a statement is run or a statement is execute, or an entire program runs or an entire program executes. So whenever we run or execute a program, all the statements in the program starts running or executing one by one. So this is one thing, just note it down, take a screenshot. Okay, so now see, so first this line will be executed. तो पहले जो है first line ये जो run होगी, ये जो run होगी तो क्या होगा? So when this line will run, what will happen? When this line will run, a variable x will be created. Okay, this 5 is constant and x is variable. So a variable x will be created and value 5 will be assigned to him. ये जो है x variable ऐसे create हो जाता है ना, एक जो है बॉक्स क्रिएट हो जाता है, आप ऐसे समझो ना. तो ये इसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे जब आएगा कि क्या होता है इसका मतलब, कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है. अभी आप ये ध्यान में रखो कि जब मैं ये लाइन रन करवाता हूं तो एक बॉक्स है ना, स्पेस क्रिएट हो जाता है ना, उस स्पेस को बोलते हैं हम एक्स, है ना, और उस एक्स में ये जो 5 है ये वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो जैसे आपके घर में एक बॉक्स होता है ना, बॉक्सेस होते हैं घर में, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं या बैग होते हैं आपके, तो x जो है एक बैग, जो वेरिएबल होता है एक बैग की तरह होता है, उस बैग में जो है हम वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, तो जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक बैग्स. ओके, सो x इज अ वेरिएबल, इट इज जस्ट लाइक ए बैग और लाइक ए बॉक्स एंड वी पुट अ वैल्यू इनसाइड इट. ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कांस्टेंट. ठीक है, ठीक है. सो व्हेन दिस स्टेटमेंट इज रन, फर्स्ट अ वेरिएबल इज क्रिएटेड, दिस बॉक्स इज क्रिएटेड and the value 5 is put into that box. ठीक है, and when this statement executed, print x, what does this function do? This function is basically prints the value to the output window. तो जब मैं print x लिखूंगा तो जो output window है वहां पर 5 आ जाएगा. ठीक है, अभी और बात करेंगे इसके बारे में ना, आगे पढ़ेंगे. तो सिमिलरली y is equal to 6 करेंगे तो क्या होगा? a variable y is created. ठीक है, एक और बैग क्रिएट हो गया y के नाम से और फिर उसमें 6 हमने वैल्यू डाल दी. ठीक है, एंड देन आफ्टर व्हेन आई ट्राई टू प्रिंट y, तो जो y है, y एक वेरिएबल है, y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, आउटपुट विंडो पर. प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है कि जो आउटपुट विंडो है उस पर वैल्यू को प्रिंट कर दो. ठीक है, सो दिस मच इज दैट, जस्ट नोट इट डाउन, वी मूव फॉरवर्ड. Take a screenshot. Okay, hurry up, take a screenshot, later on you can write down, otherwise you write just with me because we cannot wait for much. So let's move on. So let's recall all the concepts. Okay, so whatever entities in a program, ठीक है, एक programs में क्या क्या चीजें होती है. The first thing we discussed is constants. Okay, we have constants. Constants are of two types. One is integer and another is string. Okay, integer constants are like 2, 3, 4, 5, 100, 125. All these integer numbers are integer constants. And similarly we have string constants like NBF, and then we have Jaipur. Okay, so these are basically string constants. Okay, whenever we use a string constant, we also surround it or we also use quotes around it. ठीक है, ठीक है.
And similarly, so whenever I use a string constant, I basically use quotes around it. ठीक है, जब भी मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट लूंगा तो उसके उसके अराउंड कोट्स यूज करना पड़ता है. ठीक है, ये जो होता है इसको बोलते हैं सिंगल कोट, और ये जो होता है इसको बोलते हैं डबल कोट. ठीक है, ये होता है डबल कोट, ये लिखा चुका हूं मैं ना, और ये होता है आपका ऊपर वाला सिंगल कोट. ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे तो उसके इधर आगे और पीछे जो है कोट्स लगा देते हैं ना, या तो सिंगल कोट लगा दो या डबल कोट लगा दो, एक ही बात है ना. तो ये जो होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन. द सेकंड थिंग वाज वेरिएबल्स. Variables, okay. So similarly we have two types of variables. One is integer variable and another is string variable. Like suppose x is equal to 5. So x is basically an integer variable because I am putting it, मैं इसमें क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ x के अंदर. x एक कांस्टेंट है, सो बेसिकली कांस्टेंट्स आर नथिंग बट वैल्यूज, है ना. कांस्टेंट्स ही जो होती है वो वैल्यूज ही होती है, और वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं वैल्यूज को. वेरिएबल कंटेन वैल्यूज. ठीक है, कांस्टेंट्स अपने आप में ही वैल्यू होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो वैल्यू होल्ड करते हैं, उसके अंदर वैल्यू होती है ना. वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू, वेरिएबल अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता है, उसके अंदर वैल्यू होती है. ठीक है, वेरिएबल कैसे होता है, जैसे ये x इक्वल टू 5 है, तो वेरिएबल तो ये हो गया आपका ना, ये वेरिएबल है, इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं 5. ठीक है, तो जब भी x यूज करते हैं तो उसका मतलब हो गया उसकी वैल्यू को यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो नाउ वी हैव x एज ए इंटीजर वेरिएबल, x इक्वल टू 5 बिकॉज इट कंटेन्स ए इंटीजर कांस्टेंट एंड इंटीजर वैल्यू, सो x इज ए इंटीजर वेरिएबल. सिमिलरली वी हैव y इज इक्वल टू 100. so y is basically a integer variable. Now similarly we have string variables also, like we all have, suppose I have NBF or I use double quotes because NBF is a string constant and x is a variable which contains it, so x is a string variable. ठीक है, ये जो है NBF एक string constant है, x जो है इसको contain करता है, तो इसलिए जो x है हमने ये वैल्यू इसमें कॉपी कर दी ना, इसको बोलते हैं कॉपी करना, कि NBF जो है इसमें मैंने कॉपी कर दिया. तो जो x में क्या आ गया, x में भी NBF आ गया, और जब NBF इसमें आ गया तो x एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया. ठीक है, नाउ सी, एंड सिमिलरली वी हैव y इज इक्वल टू जयपुर. नाउ this was one thing, this is integer constant and this is string, these are string variables and these are integer variables and these are string variables. Now another thing is this, suppose 100 is a roll number. Okay, 100 is a roll number, so if I use a variable y that does not say anything about the value it contains. ठीक है, if 100 is a roll number and I give this 100 to the variable y, then y does not say, the name of y does not say what is the value it contains. अगर 100 एक रोल नंबर है और इसको मैं एक वेरिएबल में डालता हूँ y में, तो y के नाम से कुछ भी समझ में नहीं आता है कि y किस चीज की वैल्यू रखता है. ठीक है, तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज वेरिएबल नेम्स जो कि उसकी वैल्यू को भी बताएं कि वो किस तरह की वैल्यू रखता है. तो सपोज अगर 100 एक रोल नंबर है तो मुझे लेना चाहिए रोल नंबर इज इक्वल टू 100, है ना. फर्क नहीं पड़ता, द रिजल्ट विल बी सेम इन योर प्रोग्राम, देयर विल नॉट बी एनी एरर. बट अगर रोल नंबर यूज करूंगा तो मुझे, अगर कोई आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा होगा, इफ समवन विल रीड योर प्रोग्राम एंड इवन इफ यू विल रीड योर प्रोग्राम, यू विल अंडरस्टैंड दैट रोल नंबर इज बेसिकली कंटेन्स अ रोल नंबर. बिकॉज इन दिस केस आई कैन नॉट से दैट y इज ए रोल नंबर, है ना. मुझे नहीं पता चलेगा कि y में रोल नंबर है, कि 100 एक रोल नंबर है, लेकिन रोल नंबर जो नेम है उससे पता चल जाएगा कि 100 एक रोल नंबर है. तो इसलिए आई शुड यूज मीनिंगफुल नेम्स. ठीक है, and similarly suppose y is equal to Jaipur, so y is a string variable, the value of y is a string constant that is Jaipur. लेकिन y से ये पता नहीं चलता कि ये इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, तो इसके लिए मीनिंगफुल नेम यूज करना चाहिए. so what should I do, I should use ct is equal to Jaipur. the output will be same in both the cases but it is more accurate, more कह सकते हैं कि more understandable, है ना. इसको अच्छे से समझा जा सकता है, मोर रीडेबल है ना. कोई भी समझेगा, कोई भी आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ओके, इफ आई एम यूजिंग सम वेरिएबल ct
that means the value of the variable will be some city name. Okay, otherwise I can use y also, but it is more readable. Okay, so the idea is we should use meaningful variable names. So you can write the next point here, we should use, although we can use any variable name, but we should always use meaningful variable names that can show the value it contains. But we should use the meaningful variable names so that the name itself represent the value it contain. Okay, just note it down. Now let us see the third concept. Just note it down, I am removing it. Now let us move on to the third concept, which is functions. So the third concept is function. The third concept is function. So function is just like a computer which takes some input, process it and gives some output. Okay, function is the one which takes some input, process it and gives some output. So in a programming language, functions are like this. So I can use any variable name. Suppose this is a variable name, this is a variable name. Basically, I do not need for that. Some functions are already available to us and we will only use them. Okay. So already Python provides lot of functions. है ना? Python में हमको बहुत सारे functions दे रखे हैं जो हम directly use कर सकते हैं ना. हमें अपने फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम बनाते हैं लेकिन वी आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना, उस लेवल तक हम नहीं जाएंगे. हम केवल देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शंस जो है हमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर. अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं ना, वो देखते हैं. सो द फंक्शंस माइट बी लाइक दिस, है ना. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट हाउ ए फंक्शन माइट वर्क, है ना. तो जैसे ये SQRT है, एंड इफ आई राइट 25 एंड इफ आई राइट x इज इक्वल टू SQRT 25, सपोज दिस SQRT फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द पाइथन, ये ऑलरेडी अवेलेबल है. तो इसमें जो मैंने इनपुट डाला वो क्या डाला, 25, है ना. So whatever comes in between the parentheses is basically the input to the function. ठीक है. So the function is SQRT and whatever I write in between the parentheses is nothing but the input to the function, and the output to the function is basically goes to x. ठीक है. हम यहाँ पर इनपुट डालेंगे, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर हम इनपुट डालेंगे, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट जो है x की वैल्यू बन जाएगी. ठीक है, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो x की वैल्यू बन जाएगी. तो SQRT फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट. तो अगर व्हाट इज द आउटपुट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, है ना. 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है. सो 5 x की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी. ठीक है. So this entire statement is nothing but equal to 5. So this entire statement x is equal to SQRT 25 is nothing but equal to like this, means ये both statements are equal 5. Okay, they both are same thing. Because whenever I will run this statement, है ना, जब भी मैं इस स्टेटमेंट को रन करवाऊंगा, इसमें इनपुट जा रहा है 25, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन रन होगा ना. अब ये फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है ना, ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है. ये क्या करेगा कि इसका स्क्वायर रूट कर देगा. अब आई नीड नॉट टू डू स्क्वायर रूट, है ना, मुझे स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, बस ये फंक्शन जो है इसको मेरे को इनपुट देना और आउटपुट लेना. जैसे कंप्यूटर को मैं इनपुट देता हूं, आउटपुट लेता हूं, काम कंप्यूटर करता है ना, वैसे ये फंक्शन है, ये इनपुट लेगा और मुझे आउटपुट दे देगा और ये काम अपने आप करेगा ना.
ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में बहुत सारे प्रोवाइडेड है ना, तो हम वो एक एक करके फंक्शन देखेंगे जैसे जैसे हमारे काम में आते चले जाएंगे। तो हमने इसको इनपुट दिया 25 और इसने आउटपुट दिया 5, तो बेसिकली ये दो स्टेटमेंट इक्वल है, x इक्वल टू 5 हो गया ना, ये इसकी जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है ना। तो इस तरह से जो है फंक्शंस वर्क करते हैं ना। हम अभी वी विल यूज ओनली टू फंक्शन, दैट इज प्रिंट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन। लेट अस सी द वर्किंग ऑफ दैट। So we will deal with basically two function for now. One is print function and another is input function. Okay. So what is print function does? What print function does? Again, print function takes some input, like I use print and it will take some input. Suppose I am passing some string here, nbf I am passing here. So what does this statement do? ये एक स्टेटमेंट मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा है, उस स्टेटमेंट के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ना। हम फंक्शन को कॉल करते हैं हमेशा, जब भी मैं फंक्शन को बोलता हूं, फंक्शन लिखता हूं, तो मैं ऐसे कहता हूं कि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर इनपुट दिया nbf। व्हाट दिस फंक्शन डज, इस फंक्शन का प्रोसेसिंग क्या है, ये करता क्या है, ये जो मेरी आउटपुट विंडो है उस पर जो इनपुट मैंने दिया है उसको उस आउटपुट विंडो पर प्रिंट कर देता है। nbf मेरा आउटपुट विंडो पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ भी आउटपुट विंडो पर प्रिंट करवाना होता है तो वो मैं फंक्शन को, प्रिंट फंक्शन का अगर इनपुट दे दूंगा तो वो आउटपुट में मेरे को आउटपुट विंडो है उस पर प्रिंट करके दे देता है। ये प्रिंट फंक्शन का वर्क होता है ना। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में आई जनरली डू नॉट गिव सम इनपुट, ओके। जनरली मैं देता नहीं हूं, बट आई विल सी केसेस कि जहां पर हम इनपुट फंक्शन में भी इनपुट देंगे ना, लेकिन जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन में भी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है ना। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि ये इनपुट फंक्शन है, दोबारा मेरे को आउटपुट विंडो पर ले जाता है और वहां मुझसे वैल्यू पूछता है, तो मेरे को यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। सो इट बेसिकली सेज मी टू गिव सम वैल्यू। ये क्या कर रहा है कि गिव सम वैल्यू टू मी। जब whenever I call this function, it basically moves me to the output window, it basically carries me to the output window, and in the output window it asks me to enter something. So suppose I enter nbf, so okay, suppose I enter nbf here, तो ये क्या करेगा कि मेरे को nbf बोलेगा डालने को, तो मैं एंटर करूंगा nbf, तो फिर जो है ये बेसिकली nbf जो है इसको रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि x इक्वल टू nbf हो गया आपका, है ना। So these two statements are basically equal. तो जब भी मैं इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगा ये मुझे आउटपुट विंडो पर ले जाएगा, वहां पर मुझे कहेगा कि कुछ वैल्यू डालो, जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू जो है इसका आउटपुट होएगी और वो जो है x में चली जाएगी, ठीक है। ये जो है बेसिकली दीज आर टू मेन फंक्शन, प्रिंट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन विद विच वी विल डील, ओके। एंड लेटर ऑन वी विल सी मोर फंक्शंस, ठीक है। नाउ वन important point is here. So basically these two statements are equal, okay. So output of input is basically whatever I give in the keyboard, in the output window via keyboard is basically output to this function, ठीक है। So basically this is equal to x equal to nbf. Now there is one more thing, let us see. Whenever I use print function and I give some value to it, है ना, I am giving some string constant to it, जो भी string constant है मैं इसको दे रहा हूं, जैसे मुझे print करवाना है nbf is a string constant, so basically I am using quotes around it, but whenever this function print this and it removes the quote, ठीक है। तो जब भी मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये जो है कोट्स को रिमूव करके प्रिंट करेगा ना। ये आपने अगर किसी ने ट्राई करा होगा तो अगर if I try to print nbf and that is written in between the quotes, but whenever I try to print this, the print function basically remove the quotes and then print it, ठीक है। Similarly the input function, whenever I give an input nbf, the input function takes the input and use the quotes around it, ठीक है, and put the quotes around it, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा कि स्ट्रिंग लेगा, जो भी आपने एंटर किया ना वो लेगा और उसके अराउंड जो है कोट्स लगा देगा और फिर उसको जो है रिटर्न कर देगा ना, वो वैल्यू जो है x की हो जाएगी, तो x की वैल्यू nbf हो जाएगी ना, और कोट्स लगा के आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि जो भी मैं इसको देता हूं कोट्स लगाकर, वो कोट्स को हटा देता है और प्रिंट करता है। और इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी मैं इसको आउटपुट विंडो में देता हूं वो ले लेता है, लेकिन उसके आगे जो है कोट्स लगा देता है आगे पीछे। अब आगे पीछे कोट्स लगा के इसने फिर x को वो वैल्यू दे दी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी nbf हो जाएगी, है ना। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन. This is very important. If you are not able to get properly,
do revise, okay, frequently revise this lecture, 2-3 times, 4 times revise this lecture, okay, and we will see the programs, then it will be more clear. Otherwise frequently revise it because it is not a very easy concept, okay. Programming is basically, when you start learning it, basically very difficult, but once after making programs and after practicing a lot it becomes very easier, ठीक है। आपको एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस लेक्चर को 1-2 बार देखो, ठीक है। और देखते हैं, देखो और आगे चलते हैं और क्या है। हाँ, सो देयर इज वन मोर कंसेप्ट व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, सपोज दैट इज यू कैन टेक अ क्वेश्चन, सो आई एम रिमूविंग इट एंड नाउ वी विल सी अ क्वेश्चन, ओके। So I am going to remove it and now we will see a question. You try it, okay, note it down the question, note down the question, write it on the white screen editor window and run it and then see the output on the black window, that is output window, okay. Now let us see the program. The program is like this: Jaipur is equal to Ajmer. Okay, this is the one line, okay. This is the first statement in my program. The second statement is print. So print, and then I am trying to print Jaipur, or then suppose I try to print Jaipur, and then I try to print Ajmer, and then I try to print AGMER. Okay, so this is my program on the white screen. When I will run this program, a black screen will appear, which is basically output window, and this is the editor window. तो ये एडिटर विंडो पर मैंने प्रोग्राम रन कराया, यहाँ पर मेरा येलो बटन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आउटपुट विंडो आ जाएगी। तो इस आउटपुट विंडो पर आउटपुट क्या आएगा, बेसिकली ये आपको देखना है ना। तो देखो कौन बता पाता है कि सपोज ये क्या होगा, पहली लाइन जब फर्स्ट लाइन विल रन, व्हाट विल हैपन, जो ये प्रोग्राम अगर मैं रन करवाऊंगा तो पहले क्या होगा कि फर्स्ट लाइन जो है ये रन होगी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सो फर्स्ट लाइन विल बी रन एट द फर्स्ट लाइन विल बी रन, और जब ये लाइन रन होगी तो क्या होगा, एक वेरिएबल जयपुर क्रिएट होगा, है ना, एक बैग मेरे पास आ जाएगा जयपुर के नाम से, है ना, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ये जयपुर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। लेकिन इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, इस वेरिएबल की वैल्यू होगी अजमेर, है ना, इस वेरिएबल की वैल्यू होगी अजमेर। तो अब कौन बता रहा है, फटाफट से, है ना, मेरे को रिप्लाई चाहिए कि सेकंड का आंसर क्या आएगा। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, जब थर्ड लाइन रन होगी तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, जब फोर्थ लाइन रन होगी तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, और जब फिफ्थ लाइन रन होगी तो व्हाट विल प्रिंट हियर। जस्ट क्विकली गिव मी द आंसर, देखते हैं हु कैन गिव मी द आंसर व्हेन दिस सेकंड लाइन विल रन। सो गिव लाइक आंसर, कि ऐसे बताओ कि सेकंड का आंसर ये है, थर्ड का आंसर ये है, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ऐसे है ना। फटाफट बताओ हु कैन रिप्लाई फास्ट। देखते हैं कौन आंसर कर सकता है यहां पर, फटाफट बताओ कि क्या आंसर आएगा यहां पर। जब मैं प्रिंट जयपुर करवाऊंगा, सेकंड का आंसर है जयपुर, ठीक है, सेकंड का आंसर किसी ने मेरे को बताया जयपुर है, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या आएगा, साइड लाइन प्रिंट जयपुर, सारी लाइन में प्रिंट जयपुर आएगा, सारी लाइन में प्रिंट जयपुर बता रहे हैं। और कौन बता रहा है, थर्ड में जयपुर है ना, थर्ड में जो है जयपुर है, ओके। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। फटाफट बताओ फोर्थ लाइन, व्हाट विल बी द आउटपुट इन द फोर्थ लाइन का आउटपुट क्या होगा, फोर्थ लाइन का आउटपुट क्या होगा, और फिफ्थ लाइन का आउटपुट क्या होगा, फटाफट से बताओ। ये कौन सी लाइन का आंसर है अमित ढाका, कौन सी लाइन है ये, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड। जस्ट गिव मी द आंसर क्विकली कि ईच लाइन, हर लाइन का आउटपुट क्या होगा। थर्ड का आंसर है अजमेर, थर्ड का आंसर अजमेर बता रहे हैं, थर्ड लाइन का, है ना, थर्ड लाइन का बताना है, अब थर्ड उसका नहीं बताना है। यहाँ देखो नंबर लिख रखे ना मेरे को, उस नंबर का, प्रिंट के बाद क्या लिखा है, फोर्थ लाइन में प्रिंट के बाद अजमेर लिखा है, ये अजमेर है, AGMER, अजमेर लिखा है ना यहाँ पर, ये जो अजमेर, दो ही तो वर्ड्स यूज करने अपन। जस्ट क्विकली रिप्लाई so that we can see the examples.
ट्राई ट्राई ट्राई, फोर्थ लाइन में प्रिंट के बाद क्या लिखा है? सेकंड का अजमेर, फिफ्थ का अजमेर। सेकंड का आंसर किसी ने अजमेर बताया है ना? एक ने बताया जयपुर, एक ने बताया अजमेर, और फिफ्थ का क्या बताया? फिफ्थ का किसी ने बताया है अजमेर, है ना? फिफ्थ का भी अजमेर बताया है किसी ने। क्विकली रिप्लाई, और सोच लो फटाफट, है ना? जल्दी से सोच लो क्या क्या आएगा सबका आंसर। फोर्थ का अजमेर, फिफ्थ का अजमेर, सेकंड का अजमेर। सर फोर्थ लाइन के कोड रिमूव होगा सर तो अजमेर आएगा। फोर्थ लाइन का कोड रिमूव क्यों करेंगे? कोई भी कोड, है ना? कुछ भी कोड रिमूव नहीं करना है ना। कोड तो मैंने लगा रखा है, कोड रिमूव तो फिफ्थ लाइन में कर रखा है। कोट होता है बेटा, कोड नहीं होता, कोट होता है ना। कोट होता है, COUTE, कोट, है ना? कोड तो इस प्रोग्राम को बोलते हैं, कोड अलग चीज है। कोड तो प्रोग्राम का मतलब ही कोड होता है, ठीक है? यहां मैं कोट बोल रहा हूं, सिंगल कोट, डबल कोट। नहीं, रिमूव तो इसमें कर रखा है ना मैंने, फिफ्थ में रिमूव कर रखा है, ठीक है? अब देखो मैं बता रहा हूं क्या क्या आंसर आएगा इसका। देखो फर्स्ट का जिसने जो भी किया, फर्स्ट तो उसका तो कोई आउटपुट आएगा नहीं, है ना? फर्स्ट तो प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं, आउटपुट विंडो पे तो वही आउटपुट आता है जो मैं प्रिंट करवाता हूं ना। तो फर्स्ट से तो क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक वेरिएबल क्रिएट होगा, एक बैग क्रिएट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो अजमेर होगी, ठीक है? सेकेंड लाइन जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट है, सो दिस सेकेंड लाइन विल बेसिकली प्रिंट समथिंग, ठीक है? ये सेकेंड लाइन जो है वो आउटपुट विंडो पर कुछ प्रिंट करेगी। सेकेंड लाइन में क्या है? जयपुर। जयपुर क्या है? एक वेरिएबल, है ना? ये जयपुर मैंने वेरिएबल लिया है। अजमेर इज ए कांस्टेंट, अजमेर इज ए कांस्टेंट इन स्ट्रिंग, एंड जयपुर इज ए, सो अजमेर इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड जयपुर इज ए स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है? ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब देखो जब भी मैं वेरिएबल को प्रिंट करता हूं ना, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल खुद से प्रिंट नहीं होता, इसकी वैल्यू प्रिंट होती है। यही मैंने बोला था ना कि वेरिएबल में खुद में कुछ भी नहीं होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। तो जयपुर की जो वैल्यू है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अजमेर। तो मेरा आंसर आएगा यहां पर अजमेर, ठीक है? सेकंड का आंसर आएगा अजमेर। थर्ड जो है, इसमें देखो ये जो है थर्ड जो है कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है ना? अगर मैंने इसके आगे पीछे कोट्स लगा दिया, इफ आई हैव यूज्ड कोट्स अराउंड इट, दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट, दैट मीन्स इट इज इटसेल्फ अ वैल्यू। ये खुद ही एक वैल्यू है, और जब वैल्यू पास कराता हूं यहां पर तो वैल्यू ही प्रिंट होगी ना। तो ये खुद एक वैल्यू है, और प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा कि कोट्स हटा देगा, है ना? तो कोट्स हटा देगा तो जयपुर प्रिंट कर देगा। अभी मैंने बताया ना कि प्रिंट क्या करता है, कोट्स हटा देता है। तो देखो और मैं दोबारा आपको क्लियर बताऊं तो इधर ही मैं लिख देता हूं, इसको रिमूव करके। ये जो बेसिकली है ना सेकंड, आपका सेकंड जो है वो आपका इक्वल है इसके प्रिंट अजमेर, क्योंकि जयपुर की वैल्यू यही है ना। जयपुर की वैल्यू क्या है? अजमेर है, कोट्स है उसके अराउंड, तो जयपुर की जगह मैंने अजमेर लिख दिया, ये उसकी वैल्यू। तो जब इसको किसी भी वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूं, जब किसी भी वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूं तो वो वैल्यू ही प्रिंट होती है। और प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि उसके जो आजू बाजू में जो कोट्स होते हैं वो हटा देता है। तो ये जो वैल्यू है अजमेर है, इसके जो आजू बाजू में कोट्स हैं उसको हटा दिया और अजमेर प्रिंट कर दिया, ठीक है? थर्ड लाइन पर आओ, थर्ड लाइन खुद ही एक वैल्यू है ना? ये तो खुद ही एक वैल्यू है, तो वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट होगी। वैल्यू की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू तो ये खुद ही है, बस इसमें क्या करेगा, जब ये प्रिंट करेगा तो इसके कोट्स हटा देगा, तो ये प्रिंट करेगा यहां पर जयपुर। थर्ड लाइन पर आओ, थर्ड लाइन पर दोबारा से ये खुद ही एक वैल्यू है ना? ये तो खुद ही एक वैल्यू है, क्योंकि ये सराउंडेड बाय कोट्स है, सराउंडेड बाय कोट्स है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वैल्यू है। तो ये खुद ही एक वैल्यू है, तो वैल्यू तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा अजमेर। अब है फिफ्थ स्टेटमेंट, है ना? और फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या होगा कि अजमेर होगा ना। अब देखो, और फिफ्थ स्टेटमेंट में अजमेर आ रहा है। अजमेर जो है यहाँ पर वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके आजू बाजू में कोट्स नहीं लगा रखा, तो इसलिए ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है ना? अजमेर क्या है? एक वेरिएबल है। लेकिन अजमेर वेरिएबल तो मैंने कहीं पर क्रिएट ही नहीं करा,
मैंने तो केवल जयपुर वेरिएबल ही क्रिएट करा था ना, मैंने जयपुर एक वेरिएबल क्रिएट करा था और उसमें वैल्यू डाली थी अजमेर, लेकिन मैंने अजमेर करके तो कोई वेरिएबल क्रिएट ही नहीं करा, है ना। अजमेर करके मैंने कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं करा, तो इसका मतलब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये मेरे को एरर बताएगी, है ना, ये शो करेगा कि आपने कुछ गलती करी है, जो आपने वेरिएबल लिया है अजमेर, वो आपने एक्चुअल में वेरिएबल आप प्रिंट करा रहे हो अजमेर, जो कि आपने कभी क्रिएट ही नहीं करा, है ना, ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं अजमेर, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगी एरर, ठीक है। तो ये 5th लाइन में आपके बता देगा एक तरह से एरर, ठीक है। जब आप रन कराओ तो आप इस प्रोग्राम को अब रन करा कर देखना, ओके, कॉपी दिस प्रोग्राम इन द व्हाइट विंडो एंड रन दिस प्रोग्राम, ओके, एंड सी द आउटपुट, ठीक है। तो यही आउटपुट आएगा, रन करा कर देखना, ये तीनों का तो आउटपुट आ जाएगा, लास्ट में आपको बहुत सारा लंबी सारी एक एरर शो कर देगा ना, रेड कलर लाइन में बहुत सारा लंबा सा दिखा देगा आपको कि ये आपकी एरर है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है एक्चुअल में ये आपने कभी क्रिएट किया ही नहीं है। जयपुर तो वेरिएबल आपने क्रिएट करा है, लेकिन अजमेर नाम से कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं करा है ना, तो अजमेर की वैल्यू ही नहीं हो सकती, जब अजमेर वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती, है ना। पहले वेरिएबल होता है, उसमें वैल्यू डालते हैं, और जब वह वेरिएबल यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कहाँ से होगी, तो ये जो लाइन है इसमें आपके एरर आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है आज आप ये काम करना कि ये जो प्रोग्राम है आज इसको रन करवाना, ठीक है, और देखना कि किस किस का क्या क्या आउटपुट आ रहा है, व्हाइट विंडो पर इसको लिखना और ब्लैक विंडो पर आपके आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। बस हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, या फिर मैं आपको रन करवा के फटाफट से दिखा देता हूं एक छोटा सा प्रोग्राम। देखो ये जो है सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें x इक्वल टू 5 लिया, मैंने प्रिंट करवाया y, एक खुद 5 एक खुद एक वैल्यू है तो प्रिंट हो जाएगी, फिर जब मैंने प्रिंट x करवाया तो x की वैल्यू क्या है 5 है तो y हो जाएगी, तो ये मैंने येलो बटन पे क्लिक करा तो देखो आउटपुट क्या आ गया 5 आया, 5 आ गया दो बार, है ना। एक बार प्रिंट 5 करवाया था तो वो वाला आ गया, दूसरी प्रिंट x करवाया तो वो वाला आ गया, ठीक है। चलो